Hello friends, welcome back. This is Alam. I am from Jharkhand and as you know I am an English learner and this is day 18 of my 30 days English speaking challenge and I am going to share something new and very simple how to improve our English. Okay, because you know friends, we have been learning this language for 4 years but we are not able to speak, we are not able to understand, we are not able to explain in English to others. So why it is happen with us? Okay, so don't worry and let's start today topic. I will explain you step by step. Okay, so number one, why we are not able to speak English even after studying it for years. Okay, because if you face this problem, this video is for you. Okay, and we are understand but we are not able to speak, so please watch this video. And we are learning this language, so we have to watch like that of video for improving our English as well as we are understand, so it is a better. Okay, and why we can't speak? First reason is fear. We are scared of making mistake, so it is a natural. No need to think about making mistake, it's happened to everyone. It is a initially the all learners are making mistake but it's natural. Okay, and we are not try to speaking, that's why we are not able to speak. Okay, and we are thinking if I will speak English, so definitely I will make mistake, so it's natural. Okay, and so we are silent, we stay silent. Okay, and the second reason is thinking in English. Every times we are thinking in Hindi, that's why we are not able to translate English to Hindi in our mind. जब हम बात करते हैं ना तो हम किसी भी टॉपिक में हिंदी में सोचते हैं. नो, इट्स नॉट अ फेयर. हमको क्या है ना इंग्लिश में सोचना चाहिए और इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मिस्टेक ही है आपका रिजल्ट, मेन रिजल्ट. तो इसके लिए ना मिस्टेक करना भी बहुत जरूरी है. ओके, देन वी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. और हम सोचते हैं ना कि फर्स्ट हम हिंदी में सोचेंगे उसके बाद ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में. ओके, यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. सो दैट्स व्हाई वी शुड think in English and deliver your thought in front of persons. Okay, no need to think about your making mistake. Try to speak consistency. Okay, and this makes speaking slow and confusing. Okay, so third reason is too much focus on grammar. हम क्या है ना बहुत ज़्यादा ग्रामर पे फोकस करते हैं. वी आर नॉट एबल टू स्पीक बिकॉज ऑफ आवर थिंकिंग ग्रामर रूल्स. ओके, हम ग्रामर रूल्स के बारे में सोचते रहेंगे ना तुम कभी सीख नहीं पाएगी. कि जब स्टार्ट हम करते हैं ना, वी वेट फॉर अ परफेक्ट सेंटेंस. हम सोचते हैं कि हम जब तक अच्छे से सीख नहीं लेंगे, अच्छे से मतलब बोलने के लिए रेडी नहीं रहेंगे, तब तक हम नहीं बोलेंगे. यही हमारा सबसे प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बोले तो. ओके, बट वाइल वेटिंग द मोमेंट इज गॉन. फोर्थ रीजन इज बैक ऑफ स्पीकिंग प्रैक्टिस. ओके, वी रीड इंग्लिश, वी राइट इंग्लिश बट वी डोंट स्पीक इंग्लिश डेली. हम लिखते हैं, हाँ हम पढ़ते हैं, लेकिन हम बोलते नहीं हैं. तो बोलने से ना फ्लुएंसी आएगा भाई. इसके लिए क्या है ना, हम लोग को बोलना पड़ेगा. ओके, and the third, the biggest problem, fear. So we have to destroy our fear while they speak. And step number 2, okay, how to learn English properly. Now let me tell you the reason and solution. Okay, so stop being afraid makes our mistake. Okay, even native speaker makes mistake, so speak first, correct later. आप पहले बोलना शुरू करें, ऑटोमेटिकली आप अगर बोलते रहोगे ना तो वो करेक्ट होते जाएगा. तो इसके लिए ना बोलना बहुत जरूरी है. बोलोगे तो ही करोगे और आप बोल पाओगे परफेक्ट. ओके, सो थिंक इन इंग्लिश. स्टार्ट विथ स्मॉल थॉट लाइक मैं गाना सुन रहा हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग. मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड. इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंस बना करके आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो और इंग्लिश सीखने की जो कला है ना उसको आप ग्रैब कर सकते हो. एंड स्टेप नंबर 3, स्पीक डेली इवन अलोन. टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश. जब आप अकेले रहते हो ना तो उसमें आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो. आप जो हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, हम पढ़ लिए, पढ़ने के बाद क्या है ना हम छोड़ दिए, उसको रीडिंग कर लिए, हाँ मेरा याद हो गया,
यही नहीं, हमको क्या करना है, बाद में उसी को दिन में 2 से 3 बार हमको उसको रीड करना चाहिए और अपने माइंड में मेमोराइज करना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है वो याद है कि नहीं है। अगर भूले तो भी इट्स ओके, अगर याद है तो भी इट्स ओके, क्योंकि अगर भूल जाओगे तो माइंड में आएगा नहीं, हमको और प्रैक्टिस करना है। और अगर याद रह गया तो भी और प्रैक्टिस कर लो एक दो बार, ठीक है। एंड डिस्क्राइब व्हाट यू आर डूइंग, दिस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। एंड स्टेप 4, सिंपल इंग्लिश इज द बेस्ट, डोंट ट्राई टू बिग वर्ड। कभी भी स्टार्ट करो ना, छोटा से करो, छोटे से बड़े होते हैं। क्लियर इंग्लिश इज बेटर देन परफेक्ट इंग्लिश। अगर आप बोलना शुरू से स्टार्ट करोगे छोटे छोटा वर्ड से, तो आपका जल्दी क्या होगा ना, आपका फ्लुएंसी बढ़ेगा। और ऐसा नहीं कि मैं पूरा सीखूंगा उसके बाद बोलूंगा, तो उसमें क्या होगा ना, आपका फ्लुएंसी आने में टाइम लगेगा, लाइक मी, क्योंकि हम लोग भी वैसे ही, आई वॉज सेम लाइक यू एंड I was thinking like you, if I will make mistakes so every person will laugh at me। यही हम सोचते सोचते हमारा फ्लुएंसी आने में बहुत टाइम लगा। ओके, सो बी कंसिस्टेंट। ओके, स्टेप नंबर 5, बी कंसिस्टेंट। 10 to 15 minutes daily is enough, okay, but do it every day and you have to listen motivation English podcast। क्या है ना, आप मोटिवेट होना भी बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को कंसिस्टेंसी करने के लिए आपको मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। हम क्या है ना, बस कुछ दिन करते छोड़ देते, यही हमारा मेन टॉपिक है। तो हमको इसको अगर कंटिन्यू रखना है तो हमें मोटिवेशनल वीडियो एक दिन में एक एटलीस्ट सुनो। उसमें क्या होगा ना, माइंड को प्रेशर डालेगा कुछ भी करने के लिए, आपका मूड बनाएगा जो आप करना चाहते हो। ओके, सो कॉन्फिडेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्ट इंग्लिश इफ यू स्पीक डेली। ओके, इंग्लिश विल बिकम नेचुरल। और इंग्लिश आते ही रहेंगे जब तक आप बोलते रहोगे। अगर आप बोलना ही नहीं चाहते हो तो फिर इंग्लिश आएगा ही नहीं भाई। तो इसके लिए मिस्टेक सबसे होती है, मैं भी करता हूँ, मैं इस वीडियो में भी किया हूँ, और मिस्टेक से ही आप सीखोगे। और जब तक मिस्टेक नहीं करोगे, उसके बाद आप वीडियो को सुनोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो फिर आप अपने ही अंदर का एक्सप्लोर कैसे करोगे कि मैंने मिस्टेक किया कहाँ है। तो इसके लिए उठो और प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, और नो नीड टू think about fear and making mistake. So if you're asking me why your video is sometimes speed and sometimes slow, because it's my learning journey, and when I speak unwanted sentence, then I remove the little bit making my unwanted sentence. Okay, so if you like this video, like, share and subscribe my channel and comment below. I will speak English daily. Okay, and see you tomorrow with 19 days English speaking challenge. So thank you for watching this video.